Hello everyone. Today we have with us Priya. Hello everyone, I am Priya Prakarsh. I belong from Ranchi, Jharkhand, and I have completed my undergraduation from the Bhopal School of Social Sciences with the subject BCom Foreign Trade, and currently I am pursuing Masters in Social Work, Criminology and Justice at TISS Mumbai. So आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो TISS में आने से पहले मेरे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इंस्पायर यू to pursue a career in social work and why did you choose TISS Mumbai? So a career in social work is a very non-conventional sector to work with. ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हर कोई आना चाहता है या फिर जिसको इसके बारे में नॉलेज हो. तो फॉर मी पर्सनली आई वॉज ऑलवेज इन टू हेल्पिंग पीपल, सो डैट वॉज माई इंस्पिरेशन ऑफ परसुइंग प्रोफेशनल career in social work. And why TISS Mumbai? It's very obvious. TISS is one of the oldest institutions of the world and oldest in Asia, and obviously the best in India to pursue social work. The kind of exposure and learning you will get at TISS is irreplaceable. So of course TISS was the obvious choice. So guys, मेरा next question है if someone wants to pursue this course then which type of exam he or she can take and what is the admission process? So till last year it was CUET for all the courses and उसके पहले TISNET था. अब इस साल से CUET is for all other courses except HRM, ODCL and MHA. So after CUET you have to appear for an interview which consists of extempore and personal interview which has 25% of weightage. हमारे ईयर में ऐसा था. अभी बहुत चेंजेस हो रहे हैं. तो if you want to get into TISS you need to regularly check the websites and other notifications for the same. ओके सो जैसा कि आपने देखा सुना कि किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस है. सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. लाइक आपने इंटरव्यू में किस तरीके से अपना चैलेंजेस फेस किया और एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया. तो एज़ फार एज CUET एग्ज़ाम इज़ कंसर्न तो CUET इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो तो. विथ 6-7 मंथ्स ऑफ बेसिक जनरल अवेयरनेस अगर आपके पास है तो बाकी 6-7 मंथ्स का प्रिपरेशन भी एनफ होता है फॉर CUET. फॉर कैट ऑब्वियसली इट्स अ मोर डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम. तो फॉर कैट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट यू, बट फॉर CUET 6-7 months of preparation with dedication is fair enough. And for the interview and extempore of TISS I would say it's a detailed interview and you have to give you some time for preparation of the interview. You may ask your seniors or connect people with on LinkedIn to ask their experiences. इंटरव्यू में आपको आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको डिटेल्ड थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना होगा. एंड फॉर द एक्सटेम्परे इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, यू कैन डू वेल इन दैट. ओके सो टेल मी कि CUET में कितने मार्क्स का CUET हुआ था और इस साल का. तो CUET इस साल 300 मार्क्स का हुआ था. लास्ट ईयर तक 400 का होता था और डिफरेंट कोर्सेज़ के डिफरेंट कट ऑफ गए थे. फॉर MSW जनरल कैटेगरी के लिए मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज़ के लिए 150 to 160 में कट ऑफ लाई किया था एंड फॉर कैटेगरी वाइज सब्सिक्वेंटली वो डिक्रीज़ होता गया था. और कौन सा पेपर कोड था, मतलब कौन सा पेपर कोड चूज़ करे तो जो MSW CJ के लिए क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. MSW के सारे कोर्सेज़ के लिए आपको COQP 11 देना होगा जो कि जनरल पेपर कोड है और LLB का पेपर है वो. ओके सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन इन योर सोशल वर्क. So as you all know I am pursuing criminology and justice, so that is my area of interest. I was really interested into the prisoners, the human rights and the rehabilitation of prisoners and the condition of sex workers in India including child trafficking and human trafficking. So I would like to work in these specific areas. ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई मतलब बैकग्राउंड चाहिए होगा, जैसे मुझे बैचलर्स इन सोशल वर्क चाहिए ही है या फिर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ही चाहिए है, ऐसा कुछ इस कोर्स के लिए.
नहीं नहीं, TISS में किसी भी कोर्स के लिए आपको कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आपका कितना भी गैप ईयर है, आप वर्क एक्स लेके आए हो या नहीं लेके आए हो, वो मैटर नहीं करता है। इफ़ यू क्लियर द एग्ज़ाम एंड द इंटरव्यू, यू विल गेट एडमिशन इनटू TISS। Okay, so our next question is, how do you think social work can bring a positive change in society? लुक, हम जिस देश में रहते हैं उसकी डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे। पॉपुलेशन होने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, गवर्नमेंट हम तक पॉलिसी पहुंचाने की कोशिश भी करती है। लेकिन सोशल वर्कर्स का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक कम्युनिटी के बीच जाके पर्सनली उनके प्रॉब्लम्स को समझना और उनको सोल्यूशन सजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को ग्रो करने के लिए। तो सोशल वर्कर्स एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं इस सेक्टर में। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सोशल वर्क इन CJ से किस तरीके से करियर बिल्ड किया जा सकता है और क्या क्या इसका करियर स्कोप है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। तो जैसा कि ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि हमारे कंट्री में जो प्रिजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड हैं। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का है कि जो क्रिमिनल्स हैं या नहीं भी हैं उनको हम सोसाइटी क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करती है। तो पॉलिसी मेकिंग में आप अपना करियर बना सकते हो, रिसर्च में आप अपना करियर बना सकते हो अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो तो। और अगर आप इंटरनेशनली जाते हो तो बहुत स्कोप है। आप ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, UN के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ की मिनिस्ट्रीज़ हैं जो चाइल्ड राइट्स पे काम करती हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम लोग यहाँ पे टिस में रह रहे हैं, ठीक है, तो टिस में रहने का लिविंग कॉस्ट, जैसे मुंबई बहुत हाईटेक सिटी है तो इसका लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता होगा। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सिटीज़ जैसे रांची, बिहार के कुछ सिटीज़, पटना, भागलपुर, UP के कुछ सिटीज़ आ गए, लखनऊ आ गए, तो उसमें लिविंग कॉस्ट उतना ज़्यादा हाई नहीं है। तो अगर कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है कोई बच्चा, तो उसके लिए किस तरीके का माहौल होगा और किस तरीके का यहाँ पे लिविंग कॉस्ट होने वाला है, तो उसके बारे में तो कुछ बताइए। तो अगर आपको नीड है तो TISS में हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है हॉस्टल तो आप 15,000 कम से कम अगर आप एडजस्ट करके रहोगे तो 15,000, क्योंकि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ ऑफ द कंट्री है, तो 15,000 तो आपको लेके चलना पड़ेगा। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली लोगों को हॉस्टल मिल जाता है जो जिनको चाहिए होता है, और जिनको नहीं चाहिए होता है वो अगर एक्सपेंसेस बियर कर सकते हैं तो वो बाहर रहते हैं। और अगर माहौल की बात की जाए तो बहुत डिफरेंट है, ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया से यहाँ का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, बट इसको मिनी इंडिया कहते हैं। हाँ, आपको अपने एरिया के भी लोग मिलेंगे, बाहर के भी लोग मिलेंगे, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग टिस मुंबई में ये पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं, सोशल वर्क इन क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, सो इसका टोटल फिक्स्ड फीस स्ट्रक्चर क्या है, पर सेमेस्टर कितना फ़ीस लगता है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। सो इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो टोटल 1,49,000 है, जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी अराउंड 52,500 जाती है, सेकेंड सेमेस्टर की 28,000, और इसमें से 10,000 इस सिक्योरिटी होता है तो वो रिफंडेबल होता है एट द एंड ऑफ योर 2 years। और हॉस्टल की फ़ी की बात है तो 18,000 पर सेमेस्टर लिविंग कॉस्ट है और 20,000 DH का मेंबरशिप। सो दैट्स ऑल। ओके, सो नाउ टेल अस दैट कि प्लेसमेंट कितना होता है इस कोर्स का, जो मेन चीज़ के लिए हम लोग मेन तो हमारा यही है कि सोशल वर्क में काम करना है, NGOs में काम करना है, तो उसके लिए प्लेसमेंट का क्या है, एवरेज क्या प्लेसमेंट मिल जाएगा हमें अगर हम प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से आए तो इस ईयर का जो स्टार्ट्स है वो एज़ फार एज़ आई नो इट्स 19.5 lakhs हाईएस्ट इन MSW। 2 तरीके के प्लेसमेंट्स आप ले सकते हो। अगर आप NGOs में जाना चाहते हो तो अराउंड 45 to 50,000 पर मंथ। अगर आप CSR ज्वाइन करते हो, इफ़ यू आर एबल टू क्रैक CSR, तो उसकी पैकेजेस थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, 10-11 लाख पर एनम। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। आप PhD परस्यू करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दैट एज़ वेल। सो जैसा कि आपने देखा पूरा
सोशल वर्क का इन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल बताया है। बाकी मैं प्लेसमेंट का एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा। इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, नॉलेज एंड कम्युनिकेशंस, तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा प्लेसमेंट लेकर के जाओगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहो। और काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मतलब यहाँ पे मिलता है। इफ़ यू आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, अगर आप ST SC OBC से हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और GOI PMS के नाम का भी एक स्कॉलरशिप है, और स्टूडेंट एड्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलता है, तो उसके लिए बेफिक्र रहो, आप प्रिपरेशन करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।